70 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور 82 سال کی عمر میں انہوں نے پورا قرآن مجید زبانی اپنی مدرسہ کو سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب اور روزہ قیامت کے دن یہ دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. اب ہم آتے ہیں جی ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا. دیکھیں اگر آپ نے اردو زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، بولے کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا ہے. اگر آپ نے اردو زبان میں کسی چیز کے تو کچھ الفاظ ہیں، آپ کی انگلش زبان میں بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ، تو آپ کی عربی زبان میں بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہیں. اچھا اگر وہ چیز آپ کے بہت قریب ہے تو آپ کیسے اشارہ کریں گے؟ ٹی پی آئی کر کے دکھائیں نا کیسے. ماشاء اللہ یہ اشارہ ہے جی. کیسے اشارہ کریں گے؟ یہ کیسے اشارہ کریں گے؟ اور چلیں ٹی پی آئی میں ہم اس طرح کر لیتے ہیں. یہ بولے کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ سب ہاتھ کھل گیا تو جمع، ٹھیک ہے. یہ سب، وہ سب. اب دیکھیں یہاں پہ تو اشارہ ہم پہلے کر چکے ہیں نا، تو یہ ڈائریکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ادھر بھی اشارہ ہو چکا ہے. اس کے اور اس کے درمیان کی ڈائریکشن یہ ہے. 45 کی سے آپ ڈائریکشن کیا لیں گے نا؟ ہیں جی 45، ٹھیک ہے. تو چلیں بسم اللہ. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا ہاذا ہاؤلائی ذالکا اولائکا. چلیے جی بارک اللہ فیکم. یہ ہیں وہ الفاظ جو آپ کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہنا ہے تو آپ کہیں گے ہاذا مسلم، یہ مسلمان ہے. ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون. کیا چینجنگ ہوئی؟ جب آپ نے ہاذا کی جمع ہاؤلائی کہا تو مسلم کی جمع سمجھ آ گئی نا؟ دوبارہ ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلمون. دیکھیں جب واحد تھا تو ذالک مسلم وہ ہے مسلمان بندہ، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان بندے ہیں. یاد رہے گا انشاءاللہ. دوبارہ ھذا مسلم ھؤلاء مسلمون، ذالک مسلم اولئک مسلمون. اب آ جائیے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف. بولے کس طرف آ جائیے؟ مذکر کا پڑھ لیا نا، مطلب وہ چیز جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے مسلم ہے تو آپ کہیں گے ہاذا، اور اگر وہ مؤنث ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاذیہ. تو چلیے ہاذا، ہاذیہ، ہاذا، ہاذیہ، ہاذا، ہاذیہ، ہاذا مسلم، ہاذیہ مسلمہ، ذالک مسلم، تلک مسلمہ. سمجھا گی نا؟ تو ذالکا کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا یا مونس کیا ہو جائے گا؟ تلکا. ہاذا ہاذیہ، ذالک تلکا، ذالک تلکا، ذالک تلکا. ٹھیک ہے. ذالکا اگر وہ دور کی چیز مذکر ہے تو ذالکا، اور مونس ہے تو تلکا. چلیے جی بارک اللہ فیکم. آئیے نقطہ تعلیم کی طرف تاکہ پھر ہم لیسن 9 شروع کر سکیں، اور بڑے ٹائم سے الحمدللہ ہمارا لیسن 9 بھی مکمل ہونے جا رہا ہے. نقطہ تعلیم بڑی پیاری حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن. کیا فرمایا؟ بولے کیا فرمایا؟
इक़राउल कुरआन, क्या फरमाया? कुरआन को पढ़ो। क्या फरमाया? कुरआन को पढ़ो। वजह भी बताई, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान को पढ़ो क्योंकि बेशक कुरान क़यामत के दिन अपने साथियों के लिए, अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। बोले क्या बनकर आएगा? शफी। शफी का मतलब क्या है? सिफारशी। कुरान को पढ़ो, कल क़यामत के दिन कुरान सिफारशी बनकर आएगा। अल्लाह, देखिए ना कितनी प्यारी हदीस है। मतलब हम कभी किधर भटकते फिरते हैं, कभी किधर भटकते फिरते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि कुरान के क़यामत के दिन ये कुरान है जो आपके हक में सिफारिश कर सकता है। क़यामत के दिन ये कुरान है जो आपके हक में। लेकिन अब सवाल ये, कुरान किन के हक में सिफारिश करेगा? देखिए यहां पर जो लफ्ज आए हैं ना, अस्हाबुल कुरान, कुरान किन के हक में सिफारिश करेगा? ली अस्हाबिही, अस्हाब कुरान वाले, जो कुरान वाले हैं ना, कुरान उनके हक में सिफारिश करेगा। अब कुरान वाले क्या मतलब? कुरान वाले, देखिए वो जो हर लेसन के आखिर में हम दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता कर। ये सारे कुरान वाले हैं। कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले, याद करने वाले, अमल करने वाले, इसमें गौर व फिक्र करने वाले, इस पर अमल करने वाले, और इसको आगे बोले, इसको आगे फैलाने वाले। कुरान क़यामत के दिन इनके लिए क्या करेगा? बोले कुरान इनके लिए क्या करेगा? सिफारिश करेगा। और चूंकि अब रमजान में भी बहुत कम टाइम बाकी है, तो चले रमजान से के ताल्लुक से भी उस हदीस को सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन कुरान और सियाम, दो चीजें जो सिफारिश करेंगी क़यामत के दिन, वो कौन सी हैं? कुरान और सियाम। ये अल्लाह की किताब और रोजा, क़यामत के दिन ये दोनों बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। कुरान आएगा, आकर के गए, अल्लाह ये रातों को उठकर मुझे पढ़ा करता था, इसको नींद आती थी, ये फिर भी रातों को उठकर मुझे पढ़ता था, ए अल्लाह इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल कर ले। और रोजा आकर के गए, अल्लाह इसको भूख लगती, प्यास लगती, ये बर्दाश्त किया करता था, ए अल्लाह इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल कर। और आपको पता है हदीस के जो सबसे आखिरी अल्फाज है वो क्या है? हदीस के आखिरी अल्फाज है, फयुशफ़ानी, उन दोनों की सिफारिश को कबूल, युशफ़ान, उन दोनों की सिफारिश को कबूल कर लिया जाएगा। तो बड़ी प्यारी हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम ये चाहते हैं कि कुरान हमारे हक में सिफारिश करे, तो हमें कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़ना होगा। भले बोले हमें कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़ना होगा, अगरचे वो ताल्लुक छोटा सा ही क्यों ना हो। आपको पता है, मैं एक दफ़ा रियाज, जहाँ से मैंने अपनी तालीम को हासिल किया, मैं एक दफ़ा वहाँ के एक बड़े कारी साहब थे जिनको बैठकर मैं अपना कुरान सुना रहा था। एक सूरत में याद करके उस पर तजवीद की प्रैक्टिस कर रहा था, मस्जिद के कोने में बैठा। वल्लाहु आलम, मतलब एक शैतानी वसवसा आया कि पता नहीं अब इतनी बड़ी उम्र में तजवीद के कवायद को अच्छी तरह से सीखना, मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक नौजवान, अरब नौजवान मेरी तरफ चलता हुआ आया, आकर मुझे कहने लगा आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं? तो मैंने कहा कुछ सूरतें हिफ्ज़ हैं, कुरान का कुछ हिस्सा हिफ्ज़ है, तजवीद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे कहने लगा आप इस चीज़ को छोड़िएगा ना। मैंने कहा दुआ करें अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं ना छोड़ूं। फिर उसने मुझे अगली बात बताई, उसने कहा मेरी वालदा ने 70 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू किया, और 82 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कुरान मजीद ज़ुबानी अपनी मुदरिसा को सुना दिया। यकीन जानिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने उस नौजवान को मेरी तरफ भेजा था। यानी वो शायद मेरी हिम्मत को बुलंद करने के लिए आया। वो आया और पता नहीं वो कौन था कौन नहीं था, बस उसने मुझे ये अपना वाकया सुनाया, थोड़ी सी हिम्मत दिलाई और उठकर मस्जिद से चला गया। और मुझे उसकी ये बात याद रह गई कि मेरी वालदा ने 70 साल की उम्र में कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना शुरू किया था, और 82 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मुदरिसा को पूरा कुरान मजीद ज़ुबानी सुना लिया। तो ये मत समझिए कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई तो अब मैं हिफ्ज़ कैसे करूँगा, अब मैं सीखूँगा कैसे। माशाअल्लाह, आप हिम्मत कीजिए और तौफीक अल्लाह के हाथ में। आप इरादा कीजिए और तौफीक अल्लाह के हाथ।